Hello students, in the last lecture we took the grammar topics and today we are going to take the writing skills topics. Okay, now today we are going to discuss the formal letter type 2. And also I will tell you about story writing today. Okay. So first of all, we are discussing formal letter type 2. Formal letter type 2, students, is the type of letter which you write to academicians. So it is written to principal, class teacher, or to the school management और ऑफिस. करेक्ट, मतलब स्कूल का ऑफिस या स्कूल का मैनेजमेंट. ठीक है, तो स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल ऑफिस, क्लास टीचर, प्रिंसिपल, इन सबको हम जो लेटर लिखते हैं इसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर टाइप 2. ठीक है, अब इसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है वो सेम रहता है लाइक फॉर्मल लेटर, लेकिन ये जो 2 वाला जो पार्ट है वो चेंज होता है. तो सबसे पहले इसके अंदर फॉर्मेट में एज यू नो सेल्फ एड्रेस 3 लाइन्स में होगा. ठीक है, देन यू हैव लिविंग द 1 लाइन, देन फॉलोड अप बाय full date. This is same as formal letter type 1. Now comes the different part. इसके बाद ध करके या तो प्रिंसिपल या तो क्लास टीचर. अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा डिफरेंस आता है. अगर प्रिंसिपल हो तो सीधे स्कूल नेम आएगा. ठीक है, और अगर क्लास टीचर हो तो पहले क्लास नेम एंड देन कॉमा करके फिर स्कूल नेम. ठीक है, और फिर वो स्कूल का एरिया. बराबर, आप सिटी नेम भी लिख सकते हो, एरिया भी लिख सकते हो, सिटी नेम भी लिख सकते हो. ठीक है, कॉमा करके सो दिस इज द फॉर्मेट. सपोज अभी इसमें प्रिंसिपल ऑफ साकार इंग्लिश स्कूल, तो द प्रिंसिपल साकार इंग्लिश स्कूल चांदखेड़ा अहमदाबाद. ठीक है, द प्रिंसिपल साकार इंग्लिश स्कूल चांदखेड़ा अहमदाबाद. अब अगर प्रिंसिपल ना हो, क्लास टीचर हो, तो आप लिखोगे द क्लास टीचर, पहले क्लास नेम यानी 10th A साकार इंग्लिश स्कूल चांदखेड़ा अहमदाबाद. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ द रिसीवर इन फॉर्मल लेटर टाइप 2. नाउ you have to keep a line, then you have to write a subject. This is all same. Okay, underline the subject, then again we have to leave a line, and after that we have to write respected sir for principal or ma'am if it is female, and the same thing we are writing for class teacher. Then you have to write 3 paragraphs, okay, and followed by thank you, then yours sincerely, correct, then XYZ or the given name. So students, this is the format of formal letter type 2. Again I am repeating. First of all, self address in 3 lines. Leave a line, full date. Leave a line,
the principal, school name, area and city, or the class teacher, class name, comma school name, then area and city. Okay? Then leave a line and then write the subject. Respected sir or ma'am, this can be written for class teacher also, for principal also. If it is a male, you have to write sir. If it is female, you have to write ma'am. And don't like madam. मैडम अभी पुराना स्टाइल हो गया. मैम, ठीक है, MA फिर एपोस्ट्रॉफी फिर AM, MA एपोस्ट्रॉफी AM, कॉमा. 3 paragraphs will be there in this formal letter type 2, that is similar to formal letter type 1. Leave a line and say thank you, and then on the left side, yours sincerely, XYZ, and given name. Okay, so please note down this. Students, this is the letter which you are supposed to write. Write a letter to the principal of HBK School, Chandkheda, Ahmedabad, requesting him to provide cool drinking water.
टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द समर सीजन। ज्यादातर जो स्कूल्स होते हैं उनके जो वाटर रूम्स होते हैं उनमें आज भी बहुत सारे स्कूल्स में वाटर कूलर्स नहीं लगे हुए हैं, ड्रिंकिंग वाटर कूलर्स, डिस्पेंसर्स नहीं है। सो दिस कॉजेज द स्टूडेंट्स टू ड्रिंक द water directly, which is actually very hot during the summer season. So you have to request to the principal to provide cold drinking water to the students during the summer season. Please note down this. Now students, you can write your self address here. First of all, ये मत लिखिएगा self address, आप अपना एड्रेस लिखिएगा, ठीक है। अपने घर का एड्रेस लिखिए 3 लाइन्स में। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आज का डेट लिखते हैं। सो टुडे इज 20th जून 2020। ओके, now you can leave one line, then you can write. Students don't make symbols like this, हाँ। ये leave a line का है, तो आप लेटर लिख रहे हो तब ये सिंबल्स मत कीजिएगा, लाइन लीव कीजिएगा। The principal HBK school चांदखेड़ा अहमदाबाद। आप फुल नेम भी लिख सकते हो और ऐसे भी आप लिख सकते हो, A' बार करके भी लिख सकते हो। बोथ आर एक्सेप्टेबल वेज ऑफ राइटिंग दिस एड्रेस। नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू लीव अ लाइन एंड वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सो यू कैन राइट द सब्जेक्ट फ्रॉम दिस regarding the provision of cool drinking water during summer season, right? So we are requesting the principal that in the summer season the students need cool drinking water. So you have to write this in the subject. So here we have to write So please note down this self address 20th June, the principal HBK school चांदखेड़ा अहमदाबाद। Here I have put the full stop. स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं कि सर सेल्फ एड्रेस के पीछे कॉमा लिखना है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, सीपीएसई का कोई ऐसा रूल नहीं है। अलग अलग रेफरेंस बुक अलग अलग चीजें फॉलो करती है। कोई कोई रेफरेंस बुक्स में कॉमा है, कोई कोई रेफरेंस बुक्स में कॉमा नहीं है। अगर आप नहीं लिखते हो तो भी चलता है, लिखते हो तो भी नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सीपीएसई का या गुजरात बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का ऐसा कोई रिटन इंस्ट्रक्शन नहीं है कि लेटर में एड्रेस के पीछे कॉमा लिखनी है या नहीं लिखनी है। बोथ द वेज आर एक्सेप्टेबल एज ऑफ नाउ। ओके, सो इवन इफ यू आर राइटिंग कॉमा तो उसमें बोर्ड में आपके मार्क्स कट नहीं होते। हाँ, अगर आपके स्कूल के टीचर इन चीजों पे मार्क्स कट करते हैं तो आप उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करके स्कूल एग्जाम्स में आप कुछ इसका ध्यान रखिए, लेकिन बोर्ड में आपको इस पे ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन गिव द कॉमा और यू कैन ओमिट द कॉमा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ स्कूल टीचर्स थोड़े ज्यादा रिजिड होते हैं। भाई मैंने जो सिखाया है उसके हिसाब से लिखोगे तो ही मैं मार्क्स दूंगी, तो उस केस में आप स्कूल एग्जाम्स में उनकी चीज को फॉलो कर दो, बराबर, क्योंकि उनका भी इंटरनल असेसमेंट जाएगा बोर्ड में। सो यू कैन डू दैट। प्लीज नोट डाउन।
डोंट वरी टू मच अबाउट द बोर्ड पोर्शन. बोर्ड के टीचर्स को ये सब देखने का ज्यादा टाइम ही नहीं होता है. दे हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू अदर देन योर पेपर चेकिंग. सो डोंट वरी टू मच अबाउट द बोर्ड राइट नाउ. Now we are writing the letter. After the subject, we are leaving one line and then we are writing. Respected sir, comma. Then you can leave some space. अब यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स, 2-3 बच्चों ने मेरे को पूछा कि सर कॉमा के नीचे चालू करने का, सर के नीचे चालू करने का, या 2 लाइन थोड़ी स्पेस छोड़ के चालू करने का. ये भी कोई बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है. ठीक है, कोई स्कूल के टीचर बोलते हैं कॉमा के नीचे, लेकिन अब इसमें मैंने देखा है एक तो बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो आधी लाइन तक तो रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, अब उसके बाद आप कॉमा के नीचे से चालू करो तो पैराग्राफ ही अजीब दिखता है. ठीक है, तो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ बनाने की जगह छोड़नी चाहिए. भाई पता चले कि पैराग्राफ बनाया है, जरूरी नहीं है कि एकदम कॉमा. अभी कुछ स्टूडेंट्स है रिस्पेक्टेड करके फिर स्पेस देते हैं, फिर मैम लिखते हैं, उनकी हैंडराइटिंग भी इतनी बड़ी होती है, तो अल्टीमेटली वो आधे से ज्यादा लाइन तो उसी में यूज हो जाता है. तो क्या पैराग्राफ क्या एकदम लास्ट में मार्जिन से शुरू करने का, ऐसा नहीं. यू हैव टू लीव सम स्पेस, बट पैराग्राफ दिखना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, रिस्पेक्टेड सर, देन यू हैव टू लीव अ लाइन, देन यू हैव टू राइट I, XYZ am a student of class, let's say 10th A, in your esteemed school. I have been studying here since standard 5. Okay, you can write this way. अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से हो तो आप स्टैंडर्ड 1 भी लिख सकते हो. अगर आप स्टार्टिंग से ही हो तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ माय एजुकेशन वो भी लिख सकते हो, लेकिन अभी मैंने फिलहाल लिखा है सिंस स्टैंडर्ड 5. I am writing this letter So here we are drawing is attention. तो attention ये नहीं है कि cool water नहीं है, attention ये है कि taps में से hot water आ रहा है. So I am writing this letter to draw your attention to the problem of hot water in the water room. उसके बाद आप एक लाइन छोड़िए, then we write
स्टूडेंट्स, इफ यू हैव नॉट नोटेड डाउन विथ मी, आप थोड़ा वीडियो पीछे लेके पॉज कर दीजिए, सो यू आर एबल टू राइट दैट फर्स्ट पैराग्राफ. In case you have not written that first paragraph till now, please take the video a little back and pause it and write down. Okay, so the water is quite hot. It is unpleasant to drink it. As you know, nobody likes to drink hot water. We are not able to quench our thirst properly. एक तो गर्मी की सीजन हो, ऊपर से ऐसे गर्म पानी पीना पड़े तो प्यास बुझती नहीं है. So you have to request him, right? So on behalf of all students, I kindly request you to install cool drinking water facility in our school. So, on behalf of all students, I kindly request you to install cool drinking water facility in our school. This way, the students will feel comfortable and be able to concentrate properly in all periods. So, this is what we need to write. After this, leave a line and say thank you. Then leave a line and yours sincerely in XYZ. Correct? This is what we need to write. ये sincerely का S भी small होगा students. खाली yours का Y capital, apostrophe नहीं. Yours का Y capital, no apostrophe है. Sincerely का S small ही आएगा. This is the letter. Please note it down very carefully. So I hope you have understood this, students. Now students, we are taking the new topic in writing, that is story writing. Now students, story writing जो है, it can be asked in 3 different ways. 3 different ways. First is points will be given. Second, beginning line.
एंड थर्ड एंडिंग लाइन. नाउ स्टूडेंट्स, यूजुअली ये जो एंडिंग लाइन वाला जो है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं होता है. ठीक है, एंडिंग लाइन की स्टोरीज होती है भाई, स्टोरीज हैविंग द फॉलोइंग एंडिंग, लेकिन ऐसी स्टोरीज आप लोगों को 10th में नहीं आएगी. सो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस दूसरे बोर्ड्स में आते हैं, लेकिन गुजरात बोर्ड या सीबीएसई में नहीं आते हैं. सो वी डोंट नीड टू डिस्कस द एंडिंग लाइन स्टोरीज. ओके, कोई कोई रेफरेंस बुक्स में दी हुई होती है एंडिंग लाइन स्टोरीज, बट यूजुअली इट इज नॉट आस्क्ड. आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि बोर्ड में एंडिंग लाइन दी हुई हो और वो स्टोरी पूछी गई हो. राइट? सो वी विल हैव टू डिस्कस द स्टोरीज विच आर गिवन विद द पॉइंट्स एंड द बिगनिंग लाइन स्टोरीज. नाउ स्टूडेंट्स, स्टोरी नीड्स टू बी रिटन in past tense, okay, and proper use of voice needs to be done. वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस. ठीक है, तो ज्यादातर जो स्टोरीज होती है वो पैसिव वॉइस में होती है, तो उसका प्रॉपर यूज करना आपको आना चाहिए. ठीक है, एक्टिव वॉइस भी यूज हो सकता है स्टोरीज में, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्टोरीज तो होती है वो पैसिव वॉइस में ज्यादा लिखी जाती है, तो उसका यूज आपको आना चाहिए. नीड्स टू बी रिटन इन द पास्ट टेंस. ओके, नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू यूज पैसिव वॉइस इन एवरी लाइन, but wherever you are using it, wherever you are referring to the subject in the passive, you need to address it properly. That I will show you with the examples how you have to do it. So proper use of voice needs to be done, and make 4 to 5 paragraphs. Okay, and if moral is compulsory, then you have to write it. If moral is not compulsory, then you have to write it only if you know it. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में कई बार स्टोरीज के पॉइंट्स के एंड में लिखा होता है डैश करके मॉरल, या फिर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही दिया होता है कि फ्रेम द स्टोरी ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव इट अ मॉरल एंड अ टाइटल. तो उस केस में अगर मॉरल कंपलसरी है तो लिखना ही पड़ेगा, तो कोई छुटका है नहीं. ठीक है, कंपलसरी लिखा हुआ है कि राइट अ मॉरल, या लास्ट में मॉरल दिया हुआ है तो लिखना ही पड़ेगा. लेकिन अगर मॉरल के बारे में नहीं लिखा, खाली ऐसा ही लिखा हो कि फ्रेम द स्टोरी फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव इट अ सुटेबल टाइटल, और लास्ट में भी मॉरल नहीं लिखा हो, तो उस केस में अगर आपको मॉरल आता हो तो जरूर लिखिए. क्योंकि अगर मॉरल आप करेक्ट लिखते हो तो स्टोरी के अंदर अगर कहीं पे आपके एक दो मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन अगर आपने करेक्ट मॉरल लिखा है हाईलाइट करके, तो उस पर आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे. लेकिन अगर आपको मॉरल नहीं आता हो और लिखना कंपलसरी ना हो, तो होशियारी मारने की जरूरत नहीं है, मत लिखना. ओके, सो इफ इट इज नॉट कंपलसरी and you don't know the moral, then don't just write for the sake of highlighting the situation. ऐसा मत कीजिए. कंपलसरी ना हो और अगर आप लिखो और फिर वो मॉरल रॉन्ग हो जाए तो उल्टा आपके मार्क्स कट भी हो सकते हैं. सो डोंट डू दैट. ओके, ओनली इफ यू नो द मॉरल परफेक्टली. कोई स्टोरीज ऐसी होती है जिनका मॉरल हमको पहले से पता होता है. ठीक है, हमारी सुनी हुई स्टोरीज होती है, तो उसमें आप मॉरल लिख सकते हो अगर पता है तो. लेकिन अगर कोई ऐसी स्टोरी है आपने पॉइंट से डेवलप की है, आपको ही नहीं पता कि आपने जो पॉइंट से डेवलप किया है वो सही है कि नहीं, तो
In that case, if it is not compulsory, don't write the movie. Okay? So please note down this, then we are taking the example. Students, you must have framed the stories with the points in the earlier classes. So now it is time that I should give you practice by taking an example of the beginning line stories. Point से क्या है, stories बनाना आसान होता है. Beginning line से story बनाना थोड़ा tough होता है students के लिए. So I will give you that example. स्टूडेंट्स, ये है बिगनिंग लाइन. मनु सैट अंडर अ ट्री पॉन्डरिंग अबाउट हिज लाइफ. पॉन्डरिंग मतलब सोच रहा था क्या होगा मेरी लाइफ का. ही वॉज 17 एंड हैड लॉस्ट हिज मदर इन अ फायर एक्सीडेंट. देन ही फेल्ट अ हैंड ऑन हिज शोल्डर. उसके बाद क्या हुआ आपको कंटिन्यू करना है. ठीक है. अब यहां पे देखिए, ये ही फेल्ट अ हैंड ऑन हिज शोल्डर. तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसके मदर एक्सपायर हो गए हैं लेकिन फादर एक्सपायर नहीं हुए. तो या तो इसके फादर ने ऐसे हाथ रखा होगा, हो सकता है ग्रैंडफादर ने हाथ रखा हो सकता है अंकल ने रखा हो सकता है फ्रेंड ने रखा हो. राइट. देखिए स्टूडेंट्स, फादर जो होंगे ना वो ऑलरेडी सैड होंगे क्योंकि मदर जा चुकी है. तो फादर विल बी सैड. उसमें अभी फादर जाके अपने बच्चे को कंसोल करे ऐसा बहुत रेयरली होता है. लेकिन फ्रेंड जो होता है ना उसको पता होता है कि यार मेरे फ्रेंड की मदर नहीं रही. फ्रेंड विल गो एंड कंसोल इमीडिएटली. ठीक है. तो यहां पे यू हैव टू राइट. पहले आपको इतना पोर्शन कॉपी करके लिख लेना पड़ेगा नोटबुक में. ठीक है. आंसर में. एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर. देन ही फेल्ट अ हैंड ऑन हिज शोल्डर. He turned his head back and saw his best friend Sohan. Sohan and Manu had been. देखिए यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा. तो ये देखिए इधर हैड बीन आया. दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द पास्ट टेंस. ठीक है.
दिस इज हाउ यू हैव टू एड्रेस द पैसिव वॉइस. तो ये पास्ट टेंस में ये पैसिव वॉइस आ गया. So here, Sohan and Manu had been friends since their childhood. Sohan knew that Manu was very sensitive and loved his mother above everything else. He kept on crying and he refused to eat or drink anything. Correct? So please note down this.
So students, Sohan explained to him, मतलब to Manu, the philosophy of life. इसने मनु को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा. He asked him at what age had his mother lost her mother. मतलब उसने मनु को पूछा कि वो क्या एज थी तुम्हारे मदर की जिसमें उनकी मदर ऑफ हो गई. तो मनु ने रिप्लाई किया कि आफ्टर 2 years ऑफ हिज बर्थ, मतलब मनु ने अपने बर्थ की बात बताई कि मैं जब 2 साल का था तब मेरी मदर ने अपनी मदर को खो दिया. मतलब उनकी नानी जो थी मनु की, वो एक्सपायर हो गई व्हेन ही वाज 2 years old. सोहन पुट हिज हैंड ऑन हिज फ्रेंड शोल्डर अगेन एंड आस्क्ड हिम कि अगर तुम्हारी मम्मी ने उस टाइम पर खाना पानी बंद कर दिया होता और रो रही होती तो तुम्हारा क्या होता. राइट, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू हिम. तो ही एडवाइज्ड मनु. तो सोहन ने अगेन मनु को एडवाइस किया टू गेट अप एंड मूव ऑन, लिव हिज लाइफ नॉर्मली एज बिफोर विथ हिज फादर एंड फ्रेंड्स. तो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस. यहां पे फाइनली मनु गॉट अप एंड थैंक सोहन. और मनु गया अपने फादर के पास. ही कंसोल्ड हिज ओन फादर एंड डिसाइडेड दैट ही विल लिव हिज लाइफ पॉजिटिवली. तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, मॉरल जो है इसका, ठीक है, ये होगा, 2 मॉरल हो सकते हैं. एक तो फ्रेंडशिप का भी हो सकता है. अ फ्रेंड इन नीड is a friend indeed. ठीक है, मतलब जो मुश्किल वक्त में साथ दे वही सच्चा दोस्त है. ये भी इसका मॉरल हो सकता है, लेकिन इसका बेस्ट मॉरल होगा डोंट स्टॉप लिविंग until you die. जिंदगी कभी किसी के जाने से नहीं रुकती, जिंदगी आपके जाने से रुकती है. तो डोंट स्टॉप लिविंग अंटिल यू डाई. लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि भाई ये गुजर गया तो मैं गुजर गया, ये मर जाएगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. जिंदगी तब तक चलती है जब तक आप सांस ले रहे हो. तो जब तक भगवान आपको मार नहीं देता तब तक तो आपको जीना ही पड़ेगा. So this is the best moral which you can write for the story. ये भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा appropriate है, taking the points of the story in matter. इसके अलावा आपको इसका टाइटल लिखना है, वो आप लिख सकते हो. Importance of life. This you can write as the title. Okay.
अभी स्टूडेंट्स मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, एक फॉर्मल लेटर और एक स्टोरी। तो स्टूडेंट्स ये लेटर है विच यू हैव टू राइट टू द क्लास टीचर ऑफ क्लास 10th B of Sakar English School, Ahmedabad. You have to attend your cousin's wedding and need 1 week's leave. आउट स्टेशन में कजिन का वेडिंग है, उसके लिए आपको 1 वीक का लीव चाहिए, सो यू हैव टू राइट दैट लीव लेटर. ऑल्सो यू नीड टू मेंशन कि आप अपना पूरा काम फिनिश कर लोगे और आपकी नोटबुक्स जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है. तो ये चीजें आपको इस लेटर में लिखनी है एंड यू हैव टू आस्क हर टू गिव यू 1 वीक्स लीव. सेकेंड स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं राइट अ स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट्स. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने बिगनिंग लाइन वाली स्टोरी एक ले ली है. पॉइंट्स वाली स्टोरी हम 9th में 8th में बहुत बार आप लोग लिख चुके हैं. सो आई एम गिविंग यू द पॉइंट्स, यू कैन राइट द स्टोरी. स्टूडेंट्स ये यहाँ पे थोड़ा ओपन नहीं हो रहा है, सो आई विल टू राइट इट फ्रॉम हियर. राइट अ स्टोरी with following points.
तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये स्टोरी लिखनी है. 4 friends, 3 of them clever, 1 fool. See bones. First forms skeleton, second gives blood and muscles. It is a lion. Fourth friend warns. The third friend gives life. The lion kills all 3 friends. Fourth friend cries. And you have to write the moral in the title. It is an easy story, students, but you have to write 4 to 5 paragraphs on it. You have to add your own sentences to this and write the story entirely in past tense. Okay, so this is the letter and this is the story which you have to write in homework. So see you in the next lecture, students. Goodbye.